اس لیے مٹی دینے کے وقت میں لوگ کہتا ہے منہا خلقناکم، تو مٹی سے پیدا کیے گئے مٹی کے اندر ڈال دیے جا رہے ہو، لہذا اس قبر میں کوئی حسب نہیں چلے گا، کوئی نسب نہیں چلے گا، کوئی چیز نہیں چلے گی، صرف اور صرف تیرے اعمال کام آئے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت قریب ہے۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر علی سے نصیحت کرتی ہے اور اپنے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین سے نصیحت کرتی ہے کہ آ میرے بیٹے، آ میرے شوہر، جب میں مر جاؤں گا، اس دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھے موت آ جائے گی، میرے موت کا خبر کسی کو نہیں بتانا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آؤ فاطمہ کیا کہہ رہی ہو، ارے تو نبی کی بیٹی ہو، اور تو حسن حسین کی ماں ہو، اور تو میری بیوی ہو، ارے تم جنت کے سردار ہو، کیوں نہیں میں تمہارے موت کی خبر مکہ والے کو بتا دوں اور میں مدینے والے کو بتا دوں؟ کہا کہ نا، کیوں؟ اس لیے کہ مرے دنیا کے اندر میرا جسم کوئی اجنبی مرد نہیں دیکھا ہے، مرنے کے بعد بھی میرا جسم کوئی نہ دیکھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے چلی جاتی ہے، رات کا وقت انتقال ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین نہلا کر دھلا کر کفن پہنا کر تینوں باپ بیٹے جنازے کو لے کر چلتے ہیں جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، دفن کرنے کے لیے۔ راستے میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے علی، کس کا جنازہ ہے لے کر کے چل رہے ہو؟ کس کا جنازہ لے کر کے چل رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، جنت کے سردار کا جنازہ ہو اور اس کے موت کا خبر مدینے والے کو نہیں، مکہ والے کو نہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابوذر، آخری وقت میں اگر کوئی نصیحت کر دے فوراً اس نصیحت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، وصیت کر دے نافذ کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ نے وصیت کی، نصیحت کی کہ میرے جنازے کے بارے میں کسی کو خبر نہیں کرنا، اس لیے میں نے مدینے والے کو خبر نہیں کیا، مکہ والے کو خبر نہیں کیا، رشتہ دار کو خبر نہیں کیا، میں نے تمہیں خبر نہیں کیا، کسی کو خبر نہیں کیا، چلو تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہی قبر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا جاتا ہے، اور حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ اے قبر تو سن لے، یہ حضرت فاطمہ کا یہ لاش ہے، حضرت فاطمہ کا جنازہ ہے، ارے اے قبر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قبر کہتی ہے کہ اے ابوذر، یاد کر لو، یہاں پہ حسب نسب گنانے کی ضرورت نہیں، یہاں پہ نسب شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تو اسی کو کام آئے گا جن کے نام اعمال اچھے ہوں گے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ مدنی کریم
करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों कब्र के अंदर लिहाजा कब्र में हसब नहीं चलेगा और ये रिश्तेदारी नहीं चलेगी, मालो दौलत नहीं चलेगा, लिहाजा कोई मकाम नहीं चलेगा, मकाम सिर्फ आमाली होगा। अच्छे अमाल करके जाओगे लिहाजा कब्र रोशनी होगी और कब्र के अंदर आराम मिलेगा और कब्र के अंदर सुकून मिलेगा और कब्र के अंदर चैन मिलेगी और वो कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी होगी। और अगर इंसान बदबख्त बन करके जाएगा और अकर के चलेगा कि ये मेरी जमीन, ये मेरे खित्ते, ये सारी चीजें मेरी शोहरत, मेरी बराई, मेरे हसब, मेरे नसब, ये चीज वो चीज, कसम खुदा की कब्र के अंदर कोई चीज नहीं चलेगी। आज लोग तख्ते में बैठकर सरकार चलाते और लोगों को नीचे दिखाते कि ये ऐसा लगता है कि इसे मौत नहीं आएगी। ये तख्त मिल गया सारी चीजें मिल गई, ये तख्त मिल गया सारी चीजें हो गई। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मा तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मा तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। रब्बे कायनात ऐलान करता है कि आँख हुकूमत करने वाले और हुकूमत में बैठने वाले वक़्त आएगा तू भी मर जाएगा, तेरी तख्त छीन ली जाएगी और तेरी सल्तनत छीन ली जाएगी। लिहाजा बड़े से बड़े ताकतवर भी और बड़े से बड़े तख्त में बैठने वाले भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। कारून चला गया, हमान चला गया, सद्दाद चला गया, बड़े से बड़े पैसे वाले चले गए, लिहाजा अबू जहल चला गया, उतबा शैबा चला गया और सारी की सारी सल्तनत चली गई, बड़े से बड़े ताकतवर चले गए, कोई बाकी रहने वाला नहीं, तुम्हें भी जाना है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ये मुल्क अल्लाह का है, ये जमीन अल्लाह की है, सारी की सारी चीजें अल्लाह की है। लिहाजा अल्लाह ने मुख्तसर से जिंदगी दी और मुख्तसर से पैसे दिए, दौलतें दी और ये देखना चाहता है कि ये मैंने तुम्हें दौलत दिया, मैंने सरकार दी और मैंने तुम्हें खलीफा बनाया और मैंने तुम्हें ओहदे दिया, मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी। फीहा फयंजुरून कैफ तामलून, मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम अमल कैसे करते, तुम बादशाहत कैसे चलाते, तुम जमीन में हुकूमत कैसे करते, तुम मिंबरी कैसे करते, मुखिया कैसे काम चलाते, एमएलए का काम कैसे चलाते। फीहा फयंजुरून कैफ तामलून फत्तकु दुनिया वत्तकुन निसा। अरे अल्लाह ने फरमाया क्या है मेरे बंदे, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे तुम दुनिया से बचो और तुम औरतों से बचो, दुनिया से बचो, औरतों से बचो, क्योंकि ये दुनिया भी फितने की जगह है और औरत भी फितने की चीज है। फत्तकु दुनिया वत्तकुन निसा फइन्ना अव्वल फितनत बनी इसराइल कानत फिन निसा, कि सबसे पहले दुनिया के अंदर अगर फितना हुआ है तो औरत से हुआ है, लिहाजा सबसे पहले औरत से ही फितना कायम हुआ, बर्पा हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज औरतों के बीच में हुजूम है, आज हम फैशनों के भीड़ में हुजूम करते और उस जगह हमें मौत याद नहीं आती। इसलिए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो तुम दिन भर के अंदर कम से कम 20 मरतबा मौत को याद किया करो। कितनी मरतबा?
20 मरतबा मौत को याद करो। एक मरतबा सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु हंस रहे थे, मुंह खुल चुका, खिलखिला के हंसने लगे, काका मार कर हंसने लगे। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबा, मौत को क्यों नहीं याद कर लेते? अगर मौत को याद कर लेते तो तुम्हें ये कहा नहीं आता और तुम खिलखिला कर नहीं हंसते। अगर तुम मौत को याद कर लेते। आज हम मौत को भूल चुके, जिसके वजह से आज हमें जिना आम दिखाई पड़ रहा है, और मौत को भूल चुके जिसके वजह से शराब पीने वाले के तादाद लातादाद बन चुके। आज हर शहर और हर चौक में, हर चौराहे के अंदर सबसे ज्यादा शराबी ही मिलते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखिए, याद रखिए, अगर मौत अगर याद रहेगी तो ये गुनाह से बचेंगे। अगर मौत को भूल गए तो लोग शराब पिएगा, लोग जिना करेगा, लोग डकैती करेगा, लोग चोरी करेगा, लोग दगाबाजियां करेगा, लोग दूसरे के माल को हड़पेगा, लोग दूसरे के माल को दबाएगा, लोग दूसरे के माल को हड़प कर लेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मौत को याद किया करो। अगर तुम मौत को याद करोगे, लिहाजा तुमसे बुराइयां छूट जाएगी और तुमसे अकर छूट जाएगा, तुमसे तकब्बुर छूट जाएगा और तुमसे यह हसब नसब के फकरीले अल्फाज छूट जाएंगे। मगर शर्त इस बात की है कि तुम मौत को याद किया करो। इसलिए फरमाया, कह लोगो तुम मौत को कब याद करोगे? ऐसा नहीं है कि बैठ करके बोलो कि अल्लाह मुझे मौत दे दे, अल्लाह मुझे मौत दे दे, अल्लाह मुझे मौत दे दे। नहीं नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे भी मौत के मनाने से और मौत के तमन्ना करने से लिहाजा मना फरमाया है। बल्कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी उम्मतियां, जब तेरे हाथ में शराब की शीशियां, शराब के बोतलों, तुम शराब पी रहे हो, उस वक्त तुम मौत को याद किया कर। काश इसी वक्त मेरी मौत हो जाए, मैं इस वक्त मर जाऊंगा, दुनिया से चला जाऊंगा, तो मेरा ठिकाना कहाँ होगा? मैं कहाँ पे जाऊंगा? मैं किस तरफ जाऊंगा? मैं जहन्नम जाऊंगा कि जन्नत में जाऊंगा? उस वक्त मैं मौत को याद कर लिया कर। मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कह लोगों, जब अंधेरी रात हो और उस वक्त में तुम ज़िना कर रहे हो, अरे तुम उस वक्त सोचो कि पूरी दुनिया सो रही है और सबके सब आंख लग चुकी है और सबके सब घर के अंदर है, कोई नहीं देख रहा है, पर रब्बे कायनात जरूर देखता। सारी दुनिया सो जाती है मगर रब्बे कायनात बेदार रहता है। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया, ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा, सारी दुनिया सोई हुई रहती है मगर मैं तेरा अल्लाह, मैं तेरा परवरदिगार हर वक्त जागा हुआ रहता हूं। न मालूम मेरे बंदे को किस वक्त कौन सी जरूरतें पेश आ जाए, कौन वक्त किस वक्त मेरे बंदे मुझसे पुकार ले। अंधेरी कोठली के अंदर पुकार ले तो कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, मगर सबसे पहले अल्लाह पुकारेगा, अल्लाह पुकारेगा। चाहे वो
अंधेरी कोठली के अंदर हो, चाहे वो कुएं के अंदर हो, चाहे वो बयाबान जंगल के अंदर हो, जब बंदे को कोई तकलीफ पहुंचती है, अगर अल्लाह को पुकारता है, कसम खुदा की अल्लाह उसी वक्त कहता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरा बंदा मैं हाजिर हूँ। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे तुम मुझे पुकारो, ऐ मेरे बंदे तुम मुझे याद करो, और अगर तुम मुझे याद करोगे तो तुमको मौत याद आएगी, और अगर तुमको जब मौत आएगी तभी जाकर के तुम मुझसे मुलाकात कर सकते हो। इसलिए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल मौत जसलुन युसिलुल हबीब इलल हबीब, कि मौत एक पुल है जो एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मिलाता है। लिहाजा ये दोस्त अगर अल्लाह से मिलना चाहता है, ये नेक आदमी अल्लाह से मिलना चाहता है, ये नेक आदमी अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है, तो अगर बीच के अंदर कोई चीज हायल है तो सिर्फ और सिर्फ मौत है। अगर इंसान नेक अमल करेगा उसको कभी मौत से डर महसूस नहीं होगा। अगर इंसान गलत काम करेगा, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, गलत काम करेगा, ज़िना करेगा, डाका डालेगा, चोरियां करेगा, लोगों के साथ झूठ और मकरो फरेब के साथ काम आएगा, कसम खुदा की हर वक्त वो मौत से। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।